Good morning to all of you. Good morning, ma'am. स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके जी. So let's start. Today's topic is normal forms in context free languages. तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे to just specify a criteria according to which the basic grammar will be written. As an example, I would say कि अब तक हमने जितने examples किए हैं, the one example that we have done is of this type, that you are having any non-terminal, and if we are defining a production rule for this, then it may be of type this, e plus e star e, or maybe any terminal symbol. What I mean to say is even this type of rules are there. There is no specific criteria that actually in your production rule how many terminals and how many non-terminals and what combination of there might exist. So we came up with this, that there must be a criteria. Why it is required? Because generally these production rules are the resultant of your past trees. This production rule is actually dependent कि जब आप लोग एक ट्री बना रहे हो तो उसमें ये रूट होगा और रूट के बाद कितने ब्रांचेस आएंगे, और फिर इसके अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिंग इन व्हाट पार्ट दोज ब्रांचेस विल बी गेट डिवाइडेड. तो हम चाहते हैं कि एक रूल हो कि जिसमें एक ही टाइप की ट्रीज बने. अगर ट्री बन रहे हैं विद 3 ब्रांचेस, देन ऑल शुड बी विद द 3 ब्रांचेस. अगर बाइनरी ट्रीज हैं, दैट मीन्स विद 2 चाइल्ड नोड्स, तो वैसे ही ट्रीज बनने चाहिए. मतलब एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो. व्हाई? बिकॉज एक्चुअली दीज ट्रीज और दीज कंटेक्स्ट फ्री languages are going to use in some applications, one of which is parsers. The parsers or your compilers are there. तो जब वहाँ पर यूज़ होंगे तो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होना चाहिए कि हर बार इसी तरह का डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा, और इसके थ्रू पार्सिंग को फॉलो करते हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे. So that is why we came up to this topic of normal forms. That is, we want to normalize or generalize the criteria into which those production rules are actually written. So the very first question is, why are we going for the normal forms? We say that if all the productions of the grammar could be expressed in the same form, what if all of them are expressed in the same form? Then it will be easy to design algorithms that use that grammar. That means that algorithm could be your compilers or your parsers or your any other tools which are actually taking the help of those context free languages. If that is, all of the productions are expressed in the same form, then it will be easy to design such algorithms. And the next one is, it will become easy whenever we want to discuss their properties and want to show some of their proofs, want to prove some of the theorems. So that is why generally a normal form, a specific generalized design is created for the production rules. So then we came up to the normal forms. That what are normal forms? We say that if I am saying that I am having a production rule which is defined by a set C, okay, then there will be an equivalent form F which is the normal form for the same set. That means that it is depicting us the same type of rules which the required, which the previous language is given, but those rules are much more specified, or I can say some of the insignificant productions have been eliminated from them. अब एक एक आपके लिए एग्जाम्पल है कि सपोज हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन रूल्स जो है वो कुछ लिख रहे हैं.
Okay, starting with that, I'm saying firstly I have to start with S, और प्रोडक्शन रूल है इधर यहाँ पर आ सकता है A, एंड देन फॉर सिंस A इज अ नॉन टर्मिनल, सो इसके लिए भी कोई ना कोई प्रोडक्शन रूल होगा. प्रोडक्शन रूल तब तक चलेंगे जब तक हम एक टर्मिनल तक नहीं पहुंच जाते. A है मेरे पास, एंड देन फॉर दिस प्रोडक्शन रूल आई हैव B, एंड देन फॉर B सपोज आई हैव अ नॉन टर्मिनल C. ओके, सो अब यहाँ पर अगर अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है, व्हेन वी गो टू द सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, तो हम लोग क्या करेंगे. फर्स्टली हमारे पास S जो है that can be replaced with A, and further we know this A can be replaced with B, and then this B can be replaced with C. So we clearly know that we cannot stop either at A or at B, because both of them are non-terminals. They cannot be the leaf nodes of our past tree. So we have to always start from S, and at the end we will came to this C only. So why don't we just replace all of these three rules with this thing? Because this S is to A is to B is to C is of no use. This thing is not required to us. So this type of unrequired rules, some non-essential rules which are just increasing the production rules, but are of not use, but are not required by the production rules. ओके, दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें इक्विवेलेंट हैं, लेकिन जब भी इनकी पार्सिंग होगी देन इट विल टेक मोर टाइम, but this will give you the results in minimum time as compared to this one. So that's why we say कि why don't we just replace it with some another significant rules which can give me some advantages while doing the parsing. Okay, so in normal form we are going to detect such things, that what are those unrequired production rules, and what are the criteria to remove them from our grammar, so that we can create a normal form for it. We can create a generalized form of every grammar which is of context free in nature. ओके, एवरीवन, आपको ये मेन क्राइटेरिया समझ में आया कि व्हाट आर द अनरिक्वायर्ड रूल्स एंड व्हाई वी आर रिमूविंग देम? यस प्लीज. Yes, ma'am. ओके. ओके, तो हमारे पास सबसे पहला नॉर्मल फॉर्म आता है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. सो इट सेज, यहाँ पर इन लोगों ने दो तरह के रूल डेफिनेशंस जो है वो फिक्स कर दिए कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म सेज दैट ऑल ऑफ योर प्रोडक्शन रूल्स कैन बी ऑफ द फॉर्म either a non-terminal leading us towards a terminal, a single terminal, one and only one terminal, okay, where your this terminal could be a part of your alphabet set. Okay, and the second one says that a non-terminal can lead us toward only two consecutive non-terminals. Okay, ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर मेरे पास suppose x is there and then AB is written, or maybe AC is written. Any two non-terminals can exist, but this cannot be the criteria कि मेरे पास एक terminal है और एक non-terminal है. That may be on the left side or on the right side. Both are not acceptable. So this is wrong. दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. अगर आपको टर्मिनल के थ्रू कोई भी प्रोडक्शन क्रिएट करनी है, अगर हमें टर्मिनल के थ्रू प्रोडक्शन क्रिएट करनी है तो वो सिर्फ इस फॉर्म में होगी दैट अ सिंगल टर्मिनल विल बी देयर. अगर नॉन टर्मिनल्स है देन ओनली टू
नॉन टर्मिनल्स, और सिर्फ नॉन टर्मिनल्स होंगे वहाँ पर, कोई और कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सकता। जैसे हम लोगों ने एक नॉन टर्मिनल लिया और एक टर्मिनल लिया, और इवन दिस टाइप ऑफ केस कि जहाँ पर सपोज यहाँ पर मेरे पास दो नॉन टर्मिनल्स हैं बट एक टर्मिनल भी है, इस टाइप के रूल्स जो हैं वो भी यहाँ पर नहीं आ सकते। ठीक है, सो इट इज सेइंग कि स्ट्रिक्टली आपको यही जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं, दैट योर एक्स में लीड यू टुवर्ड्स अ टर्मिनल और योर एक्स में लीड यू टुवर्ड्स एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल्स। ओके, अब इस चीज से हमें एडवांटेज क्या होगा? एज वी नो कि हम लोगों ने लिखा है कि दिस एक्स can lead us towards A or C. So if I am generating a parse tree for this type of production, तो मेरे पास हमेशा किस तरीके के प्रोडक्शन बनेंगे? लाइक S is there, for S A and B type of conversions can be there. For A, only two type of non-terminal conversions can be there, and if you want to take it to the terminal, then only one existence should be there. So clearly only binary trees are there, clearly only binary trees are there which are forming up by using Chomsky normal form. So इस तरीके से जो पार्सर्स हैं वो डायरेक्टली बाइनरी ट्री यूज करेंगे, बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे और उन्हीं के थ्रू ट्रैवर्स करते हुए वो जो एक्चुअल पार्सिंग है उसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, एंड ऑल्सो जो डेरिवेशन है, क्या होता था, सिंस इट इज ओनली फॉलोइंग बाइनरी ट्री, तो हर टू ब्रांचेस के बाद जो है वो लेंथ जो है इंक्रीज होती जाएगी। रादर ये भी हो सकता था कि हम लोगों ने यहीं पे एस के साथ ही 5 ब्रांचेस ले ली। ठीक है, सो इट इज गेटिंग ब्रॉडन, पर हमें उसके लेंथ का कोई आइडिया नहीं हो रहा। पर अब क्योंकि हम लोगों ने ब्रांचेस डिफाइन कर दिए हैं तो इट विल इंक्रीज लेंथ वाइज। तो वहां से क्या है, उसकी एग्जैक्ट लेंथ को कैलकुलेट करना, एंड दैट विल हेल्प इन कैलकुलेटिंग हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक वाइल ट्रैवर्सिंग। सो वो चीज जो है वो यहाँ पर इजियर हो जाएगी। ओके, सो नॉर्मल फॉर्म जस्ट सेज कि आपके पास दो ही तरह के प्रोडक्शन रूल्स होंगे और एज अ रिजल्टेंट इट विल ऑलवेज क्रिएट बाइनरी trees. And then we created a theorem that normal form exists for a given CFG G. There exists an equal Chomsky normal form which is taken as grammar C, GC, such that this L of GC is equals to taking your original grammar and excluding some of the productions. वी नो कि हम लोगों ने ये पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास वही पुराना ग्रामर होगा, लेकिन वहां पर जो हमें अनरिक्वायर्ड प्रोडक्शंस लग रहे हैं, जो ऐसे ही बस नंबर ऑफ प्रोडक्शंस को इंक्रीज कर रहे हैं बट आर ऑफ नो यूज। ठीक है, तो जिस टाइप का एग्जाम्पल हमने ये किया था कि हमारे पास ये 3 ग्रामर्स हैं बट इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट दिस सिंगल थिंग ऑल्सो, सो दिस कम्स अंडर दिस एप्सिलॉन सेट। तो इस तरीके के जो प्रोडक्शन रूल्स हैं दैट विल गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल ग्रामर एंड द रिजल्टेंट विल बी आर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। Okay, and next its proof will be done by using some construction that we are going to do now. So, what are the rules now? What are the rules that you are going to follow to convert a simple grammar into a Chomsky normal form? Okay, सो हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने होंगे हमारे ग्रामर में ताकि हम उसके जितने भी अनडिजायरेबल प्रोडक्शन रूल्स हैं उन सभी को रिमूव कर सकें। ओके, एंड वी हैव टू मेंटेन दिस थिंग कि वो ग्रामर के जितने भी स्ट्रिंग्स उस ग्रामर जी से जनरेट होंगे, इक्विवेलेंट स्ट्रिंग्स जो है हमारी जो नई ग्रामर है जी सी, वहां से भी जनरेट होने चाहिए। सो दैट सेज दैट द लैंग्वेज जनरेटेड बाय जी इज अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होना चाहिए। वी हैव टू जस्ट चेंज द प्रोडक्शन रूल, चेंज भी नहीं, वी हैव टू मॉडिफाई द प्रोडक्शन रूल्स बट द लैंग्वेज शुड रिमेन अनचेंज्ड। Then it says another transformation to G to get rid of undesirable property shows that the language generated by G is unchanged
and then undesired property is not being reintroduced. ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे ही आप एक प्रॉपर्टी को चेंज करते हो, अगेन वी हैव टू चेक कि क्या एक नया प्रॉपर्टी मॉडिफाई करने के बाद फिर से कोई ऐसा अनडिजायरेबल प्रोडक्शन तो नहीं आ गया। ये चीज जब हम एग्जाम्पल करेंगे वहां पे क्लियरली वी कैन सी दिस. So we have to apply these things, that whenever there is an undesirable thing, you just modify it. After modification, just check that whether your modification is doing some changes in your existing grammar, and check that whether the language that has been accepted is remaining unchanged. So ये हमारे दो main basic rules हैं, and we have to continue applying them till the whole grammar has been changed into Chomsky normal form. So हमारे पास basically यहाँ पर 4 तरीके के conversion rules आएंगे कि हमें 4 steps में इस conversion को follow करना है. Firstly, epsilon rule will be there. Okay, so this rule says कि जितने भी आपके पास इस टाइप के कन्वर्जन्स हैं जहां पर डायरेक्टली एनी प्रोडक्शन रूल इज लीडिंग यू टुवर्ड्स एन एप्सिलॉन. ओके, सो उन्हें एलिमिनेट करना है. नेक्स्ट सेज दैट यू हैव टू एलिमिनेट यूनिट प्रोडक्शन. Okay, and next says that you have to remove the mixed productions, and next says that you have to remove the long productions. तो ये 4 तरीके के हमारे पास अनडिजायरेबल फॉर्म्स आएंगे जिन्हें हम टाइम बाय टाइम रिमूव करते जाएंगे. सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, एप्सिलॉन रूल. एप्सिलॉन रूल हमें बोल रहा है कि आपके पास अगर एक ग्रामर गिवन है, ओके जस्ट टेक दिस एग्जांपल, कि हमारे पास अगर कोई भी ग्रामर गिवन है तो हमें वहां पर पहले देखना है कि कितने एप्सिलॉन टाइप की कन्वर्जन्स हैं, एंड देन वी विल रिमूव देम. सो सबसे पहले यहाँ पर एक रूल सब्स्टिट्यूशन का मेथड दिया है, जो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि आप कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. अगर एस है, आई कैन राइट इट एज ए है, आई कैन राइट इट एज बी, एंड इफ बी इज देयर आई कैन राइट इट एज सी, एंड सिमिलरली आई कैन राइट एस एज सी डायरेक्टली. सो वैसे ही अगर आपके पास x है which is saying that it is a y c, and y is saying it is b, y can be z z also. So if I want to change, I want to substitute the y which is here with the y which is used at the right side of any production rule. So I will simply write, I will substitute y with b first. It will become a. Instead of y, we are writing b and then c. Simply, the substitution is done. And next says that y can be substituted as z, z. So it will say x will leads you towards a, z, z, and c. So in this type, I can create substitutions in the grammars. Okay, so this is just an example that how you are actually going to substitute the strings. So then we will just move to epsilon productions. अब यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ आ रही है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा रूल है जहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, यस, इफ देयर इज एनी रूल कि मेरे पास इस टाइप के प्रोडक्शंस आ रहे हैं दैट अल्फा क्यू एंड बीटा इज देयर. सो अल्फा एंड बीटा आर माय terminals here, and q is a non-terminal. Okay, and it is saying that this q is nullable. Nullable means that this q will leads to towards epsilon. So in that scenario you have to do what, replace that q with epsilon, and it will give you alpha epsilon beta, and alpha dot epsilon is equals to alpha only, and the resultant will be alpha beta. And you have to delete the rule which is saying q leads you towards epsilon. So as an example, suppose I have a starting symbol
Okay, and from this starting symbol, AB is given, and then it is written that B leads you toward epsilon directly. Okay, so what it says that by removing the epsilon production, what you have to do, I can replace it like this, that S will lead me toward A, and since this B can be written as epsilon, then I will simply write it as epsilon here, and I know that A dot epsilon, any terminal dot epsilon is equals to that terminal only, then it is simply A. And since from the starting symbol, now starting symbol lead me towards directly towards A, and there is no need of B is to epsilon now, so I will just simply remove this rule from the production rules and take only the other rules which are present there. Okay, and other example where I will take three production rules, like it says A, capital A and B, suppose. Okay, and B is saying epsilon. I have to just simply check where there is a production rule with an epsilon. A is with epsilon present there. Then I will check in which production rules I am having A at the right side, at the right side of the production. So clearly I am having A at the right side over here. So what I will do, I will just replace it with epsilon, and my new production rule will be, okay, let's just say that the new production rule is this. Okay, and my thing is to convert this with epsilon, and clearly A dot epsilon is A and then capital B. Okay, and then B leads you toward B, and we are not concerned with this, we are just following the epsilon removal rule. So हम लोगों ने उस, ओके, सो हम लोगों ने क्या किया, ए बी वॉज देयर, हम लोगों ने उसे चेंज कर दिया ए एप्सिलॉन बी के साथ, एंड द रिजल्टेंट इज ए बी ओनली. सो ए बी इज द न्यू प्रोडक्शन रूल. उसके बाद बी लीड्स अस टूवर्ड बी. सो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल there is no need of this production A is to epsilon. So that is why it's saying that delete the A is to epsilon rule wherever it is. Okay, so moving back, it is saying that if there is any rule of P alpha q beta, that means alpha beta could be anything there, anything at the left side, anything at the right side also, and this q is epsilon, is nullable. So in that case, add a rule, change this rule as alpha beta directly, eliminate q from here, and also eliminate the rule which says q leads you towards epsilon. As we get here, A is to epsilon is there, we have to remove this also, and we have to substitute this rule with epsilon and calculate the resultant part, which is actually taking us toward A B. So as an example, if this type of rule is here, S is to A B C D C, B epsilon B A, C B D, D for B and D for epsilon. The agenda is clear that I have to remove the epsilon production only. So firstly I will check that what are the epsilon productions here. B is for epsilon. Then I will check that where I can get this epsilon at the right side. It is present here. Okay, substitute this with epsilon, and it says that this A will also lead you toward epsilon. Okay, and in this way I can generate the new rule.
And similarly for d also, wherever you get d, change it with epsilon and create new production rules. Okay, yes everyone, are we clear with eliminating the epsilon productions? किसी को भी एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूवल में कोई डाउट हो तो बताइए. Yes, anyone? आप लोगों को कोई डाउट है फर्स्ट स्टेप में, eliminating epsilon productions? Alpha and beta are taken here as terminals. मतलब वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि उस क्यू हम लोगों ने लिया है विच इज नल प्रोडक्शन, और क्यू के लेफ्ट में भी कुछ भी हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन कैन बी देयर, कुछ टर्मिनल्स कुछ नॉन टर्मिनल्स, और उसके राइट में भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसके लेफ्ट में अल्फा लिखा गया और राइट में बीटा लिखा गया. दैट कुड बी एनी. आप कोई सिंपल एग्जाम्पल भी ले सकते हो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिया था. ओके रोहित? टर्मिनल और नॉन टर्मिनल. यस. ओके, तो अगर मेरे पास क्लियरली इस टाइप का प्रोडक्शन आ रहा है, देन आई विल राइट ए इज टू सी डी सी ओनली. Okay, and I will write it C as D only. This D will be removed and these two production rules will be removed. तो इस तरीके से एप्सिलॉन प्रोडक्शन में आपको डायरेक्टली बस यही चीज करनी है कि वेन एवर यू सी एनी एप्सिलॉन देयर, जहां पर भी वो राइट साइड में यूज हो रहा है उससे एलिमिनेट कीजिए, और जो उसका डायरेक्ट B इज टू एप्सिलॉन D इज टू एप्सिलॉन ये रूल है उससे भी एलिमिनेट कर दीजिए, एंड देन इट विल लीड यू टुवर्ड्स वन फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, अब हमारे पास आता है दूसरा पार्ट जहां पर वी हैव टू एलिमिनेट यूनिट प्रोडक्शंस. अब यूनिट प्रोडक्शन क्या चीज है? यूनिट प्रोडक्शन इज एनी ऑफ दैट टाइप ऑफ production which is leading you as that you are starting with a non-terminal and you are saying that this can be substituted with another non-terminal. ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरीके के रूल्स आते हैं इन्हें हम बोलते हैं यूनिट प्रोडक्शंस, कि आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स में आपके पास सिर्फ एक वर्ड है. ठीक है, एक वर्ड होने का मतलब है ये दो तरीके से हो सकता है, like this. ठीक है, so one place I am using lower case letter, another place I am using a upper case letter. lower case letter जो है वो बोल रहा है कि a can be x which can be a leaf node which can be a terminal which is a terminal which is a terminal actually, but this is saying a is substituted as a non terminal x. ठीक है, तो जहां पर भी एक नॉन टर्मिनल लीड्स यू टुवर्ड अ सिंगल नॉन टर्मिनल, दिस इज नोन एज अ यूनिट प्रोडक्शन. और हमें अब इन यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना है. ठीक है, सो इफ आई जस्ट आस्क यू, यू कैन सी दिस. Okay, firstly the definition: unit production is a rule whose right hand side consists of a single non terminal symbol. ठीक है, तो अब हमारे पास ये ग्रामर है. आप मुझे डायरेक्ट चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि यहाँ पर यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन सी है. Like if S is Y Z X Y, this is a unit production. Just write this line. What of the lines
present here, which of the lines here are the unit productions? Yes, please write your answer. आपको यूनिट प्रोडक्शन लिखना है. यूनिट प्रोडक्शन किस फॉर्म में होता है? दिस इज ऑल्सो रिटन कि आपके कभी भी आपके प्रोडक्शन रूल के राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉन टर्मिनल अगर प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज यूनिट टर्मिनल. तो यहाँ पर यूनिट टर्मिनल वाले रूल्स कौन कौन से हैं, आप उन्हें चैट बॉक्स में लिखिए क्विकली. ये दो नॉर्मल फॉर्म्स आएंगी आपके पास, चॉम्स्की एंड ग्रीबेक नॉर्मल फॉर्म, बोथ आर इम्पॉर्टेंट. ये जरूर कर लीजिएगा. यस, राइट योर आंसर. दिस इज वेरी इजी. My screen is not visible. I have presented. Just wait. I will present it again. हेलो. यस, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? Yes, ma'am. अच्छा, यहाँ पर स्क्रीन विजिबल. ओके, जस्ट टेल मी, स्क्रीन आपको विजिबल हो गई है? No, ma'am. नो. ओके, ठीक है, मैं ना मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ. और फिर आप मुझे बताइएगा. ठीक है, यू जस्ट स्टे हेयर, आई एम जस्ट ज्वाइनिंग बैक. आई गेस नाउ इट इज शेयर्ड. आपको स्क्रीन शो हो रही है? अब आपको स्क्रीन विजिबल है?
यस, अब आपको स्क्रीन विजिबल है? नो मैम। Okay, you have to write your answer in the chat box that what amongst these are the production rules, are the unit productions actually. ये सारे रूल्स आपके पास गिवन हैं, इनमें से कौन कौन सी लाइंस जो हैं वो यूनिट प्रोडक्शन की हैं, वो लिख दीजिए. विच आर ऑफ दिस फॉर्म, ए इज टू एक्स, लाइक. नो, रोहित यू आर राइटिंग नॉन टर्मिनल्स, ठीक है, लेकिन हमें लिखने हैं प्रोडक्शन रूल. जो भी प्रोडक्शन रूल होते हैं वो इस फॉर्म में होंगे, लाइक आई हैव रिटन इन द चैट बॉक्स, ठीक है. और यूनिट प्रोडक्शन सेज कि आपके हमेशा राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉन टर्मिनल होगा. तो इनमें से दिस इज द वन रूल, दिस इज द अनदर रूल, एक्सिस टू ए, दिस इज द अनदर रूल. तो इनमें से कौन कौन से रूल्स हैं, कुछ सिलेक्टिव रूल्स हैं जो कि यूनिट प्रोडक्शंस हैं, वो लिखिए आप. लाइक वन इज, मैं एक आंसर लिख देती हूँ यहाँ पर. Like I have written here, one is x leads to a. अब यहाँ पर x नेचुरली एक नॉन टर्मिनल है, और a जो है सिंगल प्रोडक्शन है प्लस नॉन टर्मिनल भी है, तो इसीलिए ये यूनिट प्रोडक्शन होगा. यस, वेरी गुड. y इज टू t. यस, दो और हैं. x is to a, I have written it. You have told me y to t. There are two more. A to B, Y to T, T to Y. Yes, Pooja, very correct. Right. So these are non-unit productions with us. हाँ जी, बाकियों को क्लियर है. जब भी हम लोग इस टाइप की प्रोडक्शन लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इसे मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, इस रूल को. ठीक है, हाउ इट कैन बी रिटन एज ए कैन बी रिप्लेस्ड विद बी, और ए कैन बी रिप्लेस्ड एज ए. तो ये मेरे पास एक्चुअली दो रूल्स बन गए. तो इनमें से ए इज टू बी इज यूनिट प्रोडक्शन, तो मुझे यहां से ये एक उठाना है. क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पर इसका मतलब है टी इज टू वाई और टी इज टू सी. तो इसमें से यूनिट प्रोडक्शन है टी फॉर वाई, सो दैट इज वाई इट्स रिटन. हाँ जी, सभी को क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट चीज है कि इज देयर एनी एप्सिलॉन प्रोडक्शन, yes or no? Is there any epsilon production present in this grammar? No. No. Yes, what about others? हाँ जी,
क्लियरली यहाँ पर कोई भी एप्सिलॉन सिंबल नहीं है, लैम्डा सिंबल नहीं है, तो इसीलिए वो वाले रूल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अब नाउ हमें पता चल गया है कि यूनिट प्रोडक्शंस होती कौन सी हैं। नाउ द थिंग इज टू रिमूव देम। जब भी हमें रिमूव करना है, जिस तरीके से हमने रिमूव किया एप्सिलॉन्स को, उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। सो सिंपली जस्ट चेक एट द राइट साइड। आप लोगों ने पहले हम लोगों ने डिटेक्ट किया x फॉर a, ठीक है। जस्ट डिटेक्ट दैट कि कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास राइट साइड पे x, ओनली हेयर, ओके। देन x फॉर a सेज कि दिस x कैन बी रिप्लेस्ड with a. So the new production rule will be, this was the original rule, I will just replace it with a, okay. And is there anywhere I am having another x? No, I will just leave it, ठीक है। और x is to a, सिंस x अब मेरे पास रिमूव हो गया है, x फॉर a वाला प्रोडक्शन रूल भी हम लोग यहाँ से हटा देंगे, जैसे हम x फॉर एप्सिलॉन हटाते थे, ठीक है। दिस विल गेट रिमूव्ड, और उसके बाद मेरे पास ये वाले रूल्स जो हैं, दीज आर प्रेजेंट। ओके, तो अब यहाँ से a इज टू b इज अनदर टाइप ऑफ प्रोडक्शन रूल। नाउ आई विल चेक कि मेरे पास राइट हैंड साइड पे a कहाँ पर है। a इज हेयर, ओके। सो इन द नेक्स्ट टाइम व्हाट आई विल डू, आई हैव टेकन दिस अगेन, और मैंने a इज टू b में इस a को रिप्लेस कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट a इज टू b वाला रूल भी हट गया, और हमारे पास a फॉर टर्मिनल ए, सिर्फ यही प्रोडक्शन रूल जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट रूल इज y फॉर t। अब अगर मेरे पास इस टाइप का रूल आता है तो सिमिलरली आई हैव टू परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशंस देयर, ठीक है। और ओके, मूविंग बैक टू द प्रेजेंटेशन। अब हम लोगों ने यहाँ पर प्रोसीजर वाइज देख लिया कि हाउ वी हैव टू रिमूव द थिंग्स। वी हैव टू डिटेक्ट इट वेदर इट इज प्रेजेंट, फिर हमें उसे रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद जहाँ पर भी वो यूनिट प्रोडक्शन रूल एक्चुअली प्रेजेंट होगा, फिर हमें उससे भी रिमूव करना है। नाउ वी हैव टू राइट इट, जो आपको क्वेश्चंस में आता है दैट यू हैव टू राइट इट इन एल्गोरिदम फॉर्म। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोगों ने रिमूव यूनिट्स इन ग्रामर जी, इस टाइप से हम लोगों ने एक रूल बनाया which is equals to that take new grammar g dash equals to g, the original grammar, okay, until no unit production remains in g dash। जब तक हमारे पास यहाँ पर no production rule no unit productions are remaining, we have to repeat the following steps. So it says choose some unit production x is to y, choose any of the unit production which is present and then remove it from g dash, उसे वहां से रिमूव कर दीजिए, एंड कंसिडर ओनली रूल्स दैट स्टिल रिमेन्स फॉर एवरी y is to beta where beta belongs to v star, and do add to g dash the rule x is to beta unless it is a rule that has already been removed once. So this is nothing but actually कि जब भी हमारे पास वो प्रोडक्शन रूल्स आते हैं, वी हैव टू फाइंड इट एट द दिस साइड एंड वी हैव टू चेंज इट इन आवर न्यू ग्रामर जी डैश में हमें वो रिप्लेसमेंट करनी है। और दिस मीन्स कि बीटा बिलोंग्स टू वी स्टार का मतलब है योर वी हम किस चीज को बोलते हैं, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। वी इज एक्चुअली set of non-terminals, and if it is written as v star, तो क्लीन क्लोजर का मतलब होता है जीरो और मोर अकरेंसेस। तो यहाँ से आपको सेट ऑफ नॉन टर्मिनल में से कोई भी एक टर्मिनल उठाना है। सपोज इट इज बी, सो बी के कितने भी नंबर ऑफ अकरेंसेस हो सकते हैं उनके लिए, ठीक है। सो दिस इज जस्ट के वो आपका जो हम ये रूल ले रहे हैं y इज टू बीटा, दिस बीटा कैन बी एनी सबसेट फ्रॉम योर सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स।
Okay, so after removing those epsilon productions and unit productions, all rules whose right hand side have length 1, अब हमारे पास ऐसे रूल्स आ जाएंगे यहाँ पर भी हमारे पास लेंथ 1 होगी. सो वो सारे रूल्स जो हैं हमारे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है. तो एज एन एग्जाम्पल व्हाट वी डू, now this example is given x is to s is to xy and all of these rules. After removing the unit productions, what we will get is, since this x lead us towards a, okay, यहाँ पर हमारे पास a आ रहा था, this a can be changed with b, जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं. ओके, x इज टू a हमारे पास एक फॉर्म था. ठीक है, तो वहां से हम लोगों ने क्या किया, x इज टू a इज देयर, मुझे फाइंड करना है कि इस फॉर्म को मुझे यहाँ से रिमूव करना है, x इज टू a को कंप्लीटली रिमूव करना है. रिमूव कैसे करेंगे, हमें यहाँ से सेट ऑफ टर्मिनल्स जो हैं वो ढूंढने हैं. a कैन बी रिप्लेस विद ईदर b और a. b जो है मेरे पास नॉन टर्मिनल प्रेजेंट है, तो आई विल जस्ट रिमूव इट विद द अनदर पॉसिबिलिटी विच इज a. That is why x for a is written, and or this b can be written as a terminal b. That is why b is written. Okay, b is to b is already there. फिर उन्होंने बोला a for a for a is there, and a can lead you towards b. B is a non-terminal. I will check for this non-terminal that whether there is any terminal present or not. Yes, for b the terminal b, lowercase b is present, so a can lead toward a or b. Similarly, y can be written as t, and this t says that it can be either y or c. So that is why we will just write t as c and y as also c. So यहीं से हमारे पास वो चीज आती है that at the end of, just a second. After removing the epsilon productions and unit productions, जितने भी rules होंगे that will be of length 1, जो कि हमारे पास लेंथ 1 में आ रहे हैं, वो हमारे सारे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है. तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी हमारे पास यूनिट प्रोडक्शंस थे, b इज टू b इज रिटन एज इट इज. इसके बिना हमारे पास जितनी प्रोडक्शंस थी वो मोस्टली यूनिट प्रोडक्शंस में थी. तो हम लोगों ने डबल प्रोडक्शन को चेंज नहीं किया, यूनिट प्रोडक्शंस को उठाया और उन्हें रिप्लेस कर दिया सारे के सारे टर्मिनल वैल्यूज के साथ. अब हमारे पास राइट साइड में जहां पर भी सिंगल सिंगल वैल्यूज प्रेजेंट हैं, तो वो सारे हमारे पास क्या आ गए, that are in the Chomsky normal form. Now the situation comes with this type of rules which are taking us toward a combination of terminal and non-terminal. तो उनके लिए हमारे पास आगे मिक्स्ड रूल्स और लॉन्ग प्रोडक्शन रूल्स आएंगे. ये दोनों रूल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे. आज हम लोगों ने किया है सिर्फ एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करना, and in the next part we have removed the unit production. ओके, सो अगर आप लोगों को इस चीज में कोई डाउट है तो बताइए. बाकी एट द एंड हम लोग क्या है, एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें सारी फॉर्म्स को एक ही क्वेश्चन में हम लोग रिमूव करेंगे. ठीक है, एट दैट टाइम इट विल बी मोर क्लियर. अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए 4 तरह के रिमूवल्स होंगे, जिसमें से फर्स्ट हमेशा नल प्रोडक्शंस को या एप्सिलॉन प्रोडक्शंस को रिमूव करो. उन्हें रिमूव करने के बाद लुक फॉर द यूनिट प्रोडक्शन एंड रिप्लेस देम. वो करने के बाद नेक्स्ट विल बी योर मिक्स प्रोडक्शंस. वी विल रिमूव द मिक्स्ड वन. यस एवरीवन, क्लियर टिल दिस पॉइंट? Yes, ma'am. ओके जी, अगर किसी को डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज वी कैन मूव फॉर अटेंडेंस.
Okay, then. I suppose there is no doubt